Hello and welcome to the first episode of Healthy Bachpan, a podcast series dedicated to every parent who wants to give their child the best in their life. Parenting is one of the most challenging yet beautiful journey, and we are going to make it easier for you with the expert advice and trusted guidance. I'm honored to be joined by Dr. Anuja ma'am. She is highly experienced pediatric doctor and neurologist. Thank you so much, Anuja ma'am, for joining us and starting this podcast series with us. Thank you, Shilpi. Thank you for inviting me. I'm really excited to connect with all the parents listening in, and I would like to share all my experiences. So ma'am, in the first segmentation, newborn care, let's begin with the earliest stage where parents who are very new to this space, from this earliest stage, newborn care, can you just help me ke pre-born pe kya what has to be taken care of the new mother, and जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद क्या हम एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं to make my child and to make my mama healthy. तो मैम please highlight those things. See, Shilpi, this is most wonderful journey for these first 1,000 days. This is a very important phase of life. These 1,000 days include the beginning of the pregnancy till the second birthday of the child. So it includes the 2 years of the life for the child, Right. and the in utero life, like 9 months of pregnancy. So nutrition of mother, the things which can provide the nutrition to the mother, the growth and the development is most crucial in this phase. So for healthy babies, definitely a mother should be healthy. First of all, a mother should take an adequate diet, a diet which is known as balanced diet. She should be in regular follow-up with her gynecologist for antenatal care. All the investigations should be done, which is as per protocol required by the gynecologist. And yes, some multivitamins, folate supplementation is also essential for the brain growth and for the development of baby. So after delivery, first of all, we have to just take care of the newborn baby, and every new parent is quite worried. They are quite panicked कि कैसे करेंगे, Right. है ना. फर्स्ट टाइम जो पेरेंट्स है वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, न्यू बेबी आया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अब न्यू बेबी आने वाला है, आपको आइडिया हो जाता है कि 9 मंथ पर क्या आपका एक्सपेक्टेड डेट है, बट उसके 2 से 3 वीक पहले आपको अपना एक बैग प्रिपेयर करना है फॉर ऑल द एसेंशियल थिंग्स विच यू नीड फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज. लाइक वॉश्ड क्लोथ्स होने चाहिए, 1 और 2 पेयर्स. आपको सॉक्स लेना है, मिटन्स लेना है, उनके लिए फुल स्लीव्स के क्लोथ्स रहने चाहिए ना, एज पर द वेदर कि कैसा वेदर है. यू विल नीड वुलन्स, आपको ज़रूरत पड़ सकती है. उसके अलावा बेबी का रूम प्रिपेयर करके रखना है जो आपका डस्ट फ्री होना चाहिए. टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वहाँ पर सारा कुछ होना चाहिए. जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, मोस्टली इन हॉस्पिटल्स दे आर जस्ट गिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टू मेंटेन टेम्परेचर एंड टू स्टार्ट फीडिंग. तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद ही सारे हॉस्पिटल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ डिलीवरी, वेदर इट इज़ नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, बेबी डिलीवर होते ही स्किन टू स्किन टच दिया जाता है. तो मदर के एब्डोमेन पर ही बेबी को लिटा लिया जाता है, एंड एज अर्ली एज फीडिंग कैन बी स्टार्टेड, इट शुड बी डन, ब्रेस्ट फीडिंग. सो जैसे ही बेबी आता है फिर उसका फीडिंग स्टार्ट हो जाता है. फिर बेबी हॉस्पिटल में जब सब कुछ ओके होता है तो डिस्चार्ज हो जाता है. तो फर्स्ट वैक्सीन उनको हॉस्पिटल में ही मिल जाता है, जिसमें हम BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी कवर करते हैं. जब बेबी घर जाता है तो पेरेंट्स को वो इंडिपेंडेंटली देखना पड़ता है उनको. तो वो पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे पहचानें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए हमें ध्यान रखना है. सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है बेबी का फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग is essential for baby. For first 6 months, exclusive breastfeeding is recommended. Means you don't need to give any water or any other food or any other supplementation apart from breastfeeding. So it contains all the nutrients which is required by the baby for the growth and development. तो exclusive breastfeeding meaning आप 2-3 hourly आपको बेबी को फीड कराना ही है ना. शुरुआत में मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, एंड यू नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इट साउंड्स लाइक कि ब्रेस्ट फीडिंग ही तो है,
है, कितना आराम से हो जाएगा, बट न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए उनको कंटिन्यूस एक सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट फ्रॉम बेबीज़ फादर, घर की सारी फैमिली से, कम्युनिटी से, कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके लिए स्पेस अवेलेबल है या है ना, और उनके लिए कंफर्ट है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल सराउंडिंग्स भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम मदर्स को जनरली हॉस्पिटल ड्यूरेशन में ही ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाते हैं कैसे लैच करना है, कैसे अटैच करना है, पोजीशनिंग कैसे करनी है बच्चे की, कैसे फीड कराएंगे, कैसे बर्पिंग कराएंगे। बट शुरुआत के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर मदर्स को प्रॉब्लम होता है क्योंकि फीडिंग एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, मदर एग्जॉस्ट हो जाती है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है उनको, बेबी को हर 2 घंटे में फीड कराना है। तो व्हाट वी कैन डू कि मदर फीडिंग कराए, बार बार लैचिंग कराए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है। तो हम बार बार लैचिंग कराते हैं, पोजीशनिंग को करेक्ट करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो फीड आने ही लगता है, मदर को मिल्क होने ही लगता है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। इफ मदर इज स्ट्रेस्ड, मदर इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मदर इज नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होगा उनको। तो मदर जैसे जैसे स्ट्रेस में जाते जाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, तो वो और उनको ब्रेस्ट मिल्क आना कम हो जाता है। तो मदर्स बी कॉन्फिडेंट, ये सबके साथ होता है पहले 2 वीक्स में, पर धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश हो जाती है। तो हर 2-3 घंटे पर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, और उसके बाद बर्पिंग इज अनदर एस्पेक्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बर्पिंग आपको आप किसी और फैमिली मेंबर को दे सकते हैं कि आपने ब्रेस्ट फीड कराया, आप फैमिली मेंबर को दे दीजिए, बर्पिंग हो जाएगी। तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ बर्पिंग इज रेकमेंडेड। पॉइंट इज कि बेबी को हम कैसे टेम्परेचर कैसे देखेंगे, तो डिपेंड्स ऑन वेदर। जनरली हमें रूम का टेम्परेचर 26 to 27 डिग्री मेंटेन करना होता है। बेबी को अभी जब न्यूबॉर्न बेबी आया है तो आप उसको फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनाएंगे, उसको मिटन्स पहनाना है, कैप पहनाना है, आपको सॉक्स पहनाना है उनको, और 1 or 2 लेयर डिपेंडिंग ऑन द वेदर आप उनको कवर कर सकते हैं। एक उसके अलावा हमारा पॉइंट आता है कि बच्चा कब यूरिन पास करता है। स्टूल जो होता है फर्स्ट 48 आवर्स में बच्चा हमारा फर्स्ट स्टूल पास कर सकता है, और यूरिन 24 आवर में पहला यूरिन पास हो सकता है। और उसके बाद बच्चे का घर जाकर 3 दिन के बाद रेगुलर स्टूल एंड यूरिन होना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूल बच्चे दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, कभी 6 बार भी हर बार फीड के बाद कर देते हैं, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। और कभी ऐसा भी होता है 2-2, 3-3 दिन तक नहीं करते हैं, बट अनटिल अनलेस योर चाइल्ड इज एक्टिव, योर चाइल्ड इज टेकिंग फीड, देयर इज नो वॉमिटिंग, नो एब्डोमिनल पेन, यू कैन जस्ट वेट फॉर द स्टूल। ओके, बट यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का 5 to 7 टाइम्स यूरिन पास होना चाहिए। हम बच्चे को कब बाथ दें, कब मसाज करें, तो जनरली डिस्चार्ज के बाद, डिस्चार्ज तक हम वेट कर सकते हैं। सिंपल प्लेन वाटर या फिर वेट क्लॉथ से उनका स्पॉन्जिंग सफिशिएंट है। घर जाकर आप उनको एक जेंटल मसाज दे सकते हैं, और उनको प्लेन वाटर से आप बाथ भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी क्विक। All the windows and all the doors should be closed. You have to be very पर्टिकुलर अबाउट द स्पेस कि बच्चा आपके हाथों से गिर ना जाए, या बच्चे की हैंडलिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। वाटर आप बच्चे के लिए जो कंफर्टेबल है, ल्यूकेवार्म वाटर आप ले सकते हैं उनके लिए। मसाज सिर्फ कोकोनट ऑयल से करना है। सर्दियों में कभी कभी हम ऑलिव ऑयल से भी बोलते हैं कि मसाज आप कर लो, बट जनरली जेंटल मसाज ही होता है। ऐसा वाला मसाज नहीं कि बहुत विगरस। यू नीड टू जस्ट टच द चाइल्ड, यू हैव टू जस्ट डेवलप द इमोशनल बॉन्ड। ओके, अनदर थिंग इज डाइपरिंग कैसे करनी है। तो वी रेकमेंड कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा हो सकता है कॉटन की ही नैपीज में रखें, बट स्टिल आपको लगता है कि आप कॉटन की नैपीज में नहीं रख पा रहे हैं, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, फीजिबल नहीं है, तो आप उनको डाइपर कभी कभी पहना सकते हैं, बट उसके पहले भी आपको डाइपर केयर करना ज़रूरी है। एवरी टाइम यू आर मेकिंग हिम और हर वेयरिंग डाइपर, तो आप उसके पहले बच्चे को अच्छे से नारियल तेल का एक मसाज कर सकते हैं, और साथ में डाइपर को आपको रेगुलरली चेंज करना है। आई क्लीनिंग, कॉर्ड केयर, दीज आर द 2-3 अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम आई क्लीनिंग बच्चे की करते हैं। वंस इन अ डे आई क्लीनिंग शुड बी डन, एंड इट शुड बी सिंपल। वेट वाइप्स होते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, हम क्लीन कर सकते हैं दिन में एक बार। अगर आपको उससे अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसको बीच में भी क्लीन कर सकते हैं। कॉर्ड पर अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जनरली 5 to 7 डेज में वो फॉल हो जाती है, बट जब तक वो नहीं फॉल हो रही है या फॉल हो भी गई है, तो भी आप उस पर कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। इट शुड बी ड्राई, एंड there should not be anything on this umbilical area, cord area. Okay, so these are the most important things. Ma'am, I want you to highlight के what is normal and what is not normal for a new parents, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, but still आप घर पे बैठ के देख सकते हैं कि अगर ये normal है और नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन पे जाना है।
द नॉर्मल थिंग इज कि आपका बच्चा आराम से दूध पीता है 2-3 घंटे, उसने हर 3 आवर्ली फीडिंग किया और उसके बाद वो 1 से 2 घंटे सो रहा है। तो अगर बच्चा दिन में 5 से 7 बार सुसु करता है, यूरिन पास कर रहा है, अगर योर चाइल्ड इज कंफर्टेबल, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर चाइल्ड इज गेनिंग वेट, मतलब कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग इज एडिक्वेट, वो ब्रेस्ट फीडिंग ठीक ही हो रही है उनकी। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जल्दी जल्दी सांस लेकर थोड़ा सा रुक जाना 10 सेकेंड्स के लिए, दैट इज नॉर्मल, नोन एज पीरियोडिक ब्रीदिंग। बच्चे का दिन में 4 से 5 बार हिचकियाँ लेना, वो भी नॉर्मल है। और बच्चे कभी कभी कुछ यॉर्निंग रिफ्लेक्स कर सकते हैं, कुछ यॉर्निंग कर सकते हैं, बच्चे कभी कभी हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ है। एबनॉर्मल क्या है, कब पेरेंट्स को पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए? अगर आपका बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक हो चुका है, बिल्कुल सुस्त हो गया है और जगाने पर भी नहीं जगता है, वो लैच नहीं कर रहा है, दूध नहीं पकड़ता बच्चा, योर बेबी इज नॉट फीडिंग वेल, योर बेबी इज सडनली हैज become inactive, your baby is not passing urine for 7 or 8 hours, or your baby is vomiting, your baby's color is changed, it is jaundice, he or she is looking like yellow or bluish discoloration, or the child is frequently vomiting, having loose stool, or child is feeling cold or warm like fever or hypothermia, so you need to worry and you have to, or the child is having any breathing difficulty, then you need to rush to your pediatrician as soon as possible. मैम थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि जो न्यू पेरेंट्स हैं और दे वांटेड टू जस्ट स्टार्ट, दे हैव स्टार्टेड देयर बॉन्डिंग विथ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो व्हाट रोल ऑफ द पेरेंट्स दे हैव टू प्ले फॉर मम्मा एंड फॉर पापा बोथ? The first month, most importantly for the first month, parents play a very important role in bonding, in developing a bond with babies. Okay, so it is like ये होता है कि नहीं, न्यू बॉर्न बेबी तो कुछ नहीं समझ पाता, तो उसको तो कुछ समझ नहीं आता, तो ठीक है दूध पिला दो, ब्रेस्ट फीडिंग करा दो और सुला दो, है ना, रोता है तो डायपर चेंज कर दो, बट ऐसा नहीं है। बेबीज का फर्स्ट मंथ होता है, दे कैन हेयर योर साउंड्स, ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। सो टू डेवलप अ बॉन्ड विद योर बेबी, देयर कैन बी 2 things you can do. First is the physical touch. Right. So you can just hold your baby, you can cuddle the baby, you can just give a gentle massage, you can change her diaper gently, her or his diaper gently. So this is the physical contact. You can just take him in your lap and you can just move around so that the child feels comfortable and can recognize your touch. This is for both parents, mother and father, दोनों के लिए। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन उनके साथ डेवलप कर सकते हैं। यू कैन सिंग अ सॉन्ग, आप उनको कुछ भी सुना सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, ऑल्दो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आप उनके लिए एक प्लेजेंट सा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं विच इज़ बेबी फ्रेंडली। तो इन चीज़ों से कम्युनिकेशन, योर जेंटल टच, योर जेंटल बिहेवियर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज़ सपोज कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मदर एंड चाइल्ड कैन, through which mother and child can develop a very good bond. There are so many issues the new parents can just handle newborn, like the sleepless night are there, and lot of cry, and a lot of lot of sleeping patterns are also changed for the mother and for child both. So ma'am, can you just help the new person, the new papa, new father, how to handle this? Okay, Shilpi, this is a very good question, and every new parent is worried about even everything, each and everything of the newborn baby. When the baby is not crying, they are worried why it's not crying. When the baby is crying, they are like कि क्यों रो रहा है, है ना। एवरी टाइम घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा भूखा है, इसीलिए रो रहा है। और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूबॉर्न्स क्राई बिकॉज ऑफ हंगर, बट एवरी टाइम हंगर इज नॉट द इशू, है ना। देयर कैन be another issues like बच्चा आपका आपने फीड कराया, उसने फीड ले भी लिया, बट बच्चे का डाइपर गीला हो गया है, देयर कैन बी डाइपर सॉइलिंग, और देयर कैन बी सिंपल टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाया है, बच्चे को गर्मी लगी है, आपने बहुत ओवर क्लोथिंग कर दिया, उनको रैप कर दिया रूम में, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो बच्चे को गर्मी लग सकती है, हो सकता है बच्चे को ठंड लगी हुई है, बच्चे के क्लोथ्स कंफर्टेबल नहीं है और उनका बेडिंग कंफर्टेबल नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना सिर्फ बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, जिसको हम कोलिक कहते हैं,
जो जनरली हमारा इनिशियल ये न्यूबॉर्न जो मिड न्यूबॉर्न फेज है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कोलिक का रीज़न जो है तो सबसे पहले हमें ये कोई भी दवा देने के पहले, बच्चे को कोई भी मेडिसिन देने के पहले इन सारे कॉजेज़ को रूल आउट करना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है, तो ट्राई टू फीड हिम। अगर आपको लगता है, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके बच्चे ने आपने अपने बच्चे को फीड करा दिया है और वो फीड उसके लिए एडिक्वेट है, एंड आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि डायपर सॉइलिंग तो नहीं हो रही है, बच्चे को का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, क्लोथिंग्स चेक कर लिया, कहीं कुछ प्रिक तो नहीं कर रहा है उसको बच्चे को, उसके बाद भी आपका बच्चा अगर रोई जा रहा है और किसी भी तरह शांत नहीं होता है, तो यू नीड टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ कोलिक पेन, जिसे हम मरोड़ उठना कहते हैं। तो ये जनरली हमारा बच्चों में शाम के टाइम से स्टार्ट होता है, इवनिंग से स्टार्ट होता है, और बच्चे मिडनाइट आते आते बहुत परेशान करने लगते हैं। तो उसके लिए भी हमारा ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कोलिक इज़ बिकॉज न्यूबॉर्न्स आर हैविंग ग्रोइंग इंटेस्टीन, तो उनका इंटेस्टीन अभी इमेच्योर है, तो उनको ये कोलिक पेन मरोड़ उठ सकता है। तो जनरली, और ऐसा भी नहीं है कि ब्रेस्ट फीड बच्चों में या फिर फॉर्मूला फीड बच्चों में कम होता है या फॉर्मूला फीड वालों में ज़्यादा होता है और ब्रेस्ट फीड बच्चों में कम होता है, बट मिक्स फीड शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड। We should avoid mixed feeding. If you are giving breastfeeding, you should continue with breastfeeding. Sometimes क्या होता है कि बच्चा रोने लग जाता है, पेरेंट्स को लगता है ब्रेस्ट फीडिंग से ना पेट नहीं भर रहा है, तो वो एक दो सप्लीमेंट कर देते हैं कि फॉर्मूला फीड दे देते हैं, बट दिस शुड नॉट बी डन। रोने का रीजन हमेशा सिर्फ भूख नहीं है, बच्चे को सिर्फ दूध नहीं चाहिए, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कोलिक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर बेबी अपराइट, हमें सीधे रखना है बच्चे को, बर्प दिलाने की कोशिश करें, उनको अपराइट रखें, बर्प दिलाने की कोशिश करें। उससे भी अगर लग रहा है आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आप बच्चे को सिंपल साइकिलिंग मूवमेंट करा सकते हैं, साइकिलिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं हम इसे। बच्चे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसके पेट के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बट उसके बाद भी अगर बेबी शांत नहीं होता है तो मीट योर पीडियाट्रिशियन। वी गिव फ्यू ड्रॉप्स विच इज़ नॉट 100% इफेक्टिव, बट कई बार हम जब देते हैं तो बच्चों को उससे कुछ आराम हो जाता है, और उसके बाद भी बेबी अगर शांत, वो ड्रॉप्स देने के बाद भी बेबी शांत नहीं होता है, तो जस्ट टेक हिम टू अ ड्राइव। ओके, 90% केसेस में बच्चों का कोलिक ठीक हो ही जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है या इनमें से कोई भी रीजन नहीं है और आपको लगता है कि नो समथिंग इज सीरियस, योर चाइल्ड इज रिपीटेटिवली क्राइंग डूइंग आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, एंड देन यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन इमीडिएटली। One question every new parent asked about the vaccination. So ma'am, do vaccination really weakens the child immunity? Like ma'am, what's the truth behind this? Okay. Many of the parents come to me जो ये कहते हैं कि मैम इतना सारा वैक्सीन हम दे रहे हैं तो बच्चे को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या हम बच्चे की इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को ओवर बर्डन तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके पहले अब वैक्सीन हार्मफुल है या नहीं है, बेनिफिशियल है, उसके पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम वैक्सीन क्यों दे रहे हैं और हम वैक्सीन हमारी बॉडी में जाकर कैसे काम करता है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू, अभी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे इंडिया में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, और जो पोलियो है वो एलिमिनेट हो गया है, और अगले 5 साल में मीजल्स भी एलिमिनेट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और कई सारे डेडली डिसीज जैसे डिप्थीरिया, टेटनस है, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी कहते हैं, वो अब बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट्स भी बहुत कम हो गए जस्ट ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन की वजह से देयर आर हार्डली 20 वैक्सीन्स अवेलेबल, सो यू आर गिविंग 20 वैक्सीन्स, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम सारे बच्चों को 20 वैक्सीन नहीं देते हैं। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी हैव सच अ वंडरफुल इम्यून सिस्टम कि एक साथ कई सारे एंटीजेंस भी अगर हमारे इम्यून सिस्टम को आकर अफेक्ट करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ एंटीजेंस को एक साथ रिएक्ट कर सकता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर सकता है। तो जब कोई भी बीमारी होती है या कोई भी जर्म आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है एज फॉरेन इन्वेडर कि ये फॉरेन चीज़ है, और उसके बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करना शुरू करता है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम वो जो फॉरेन इन्वेडर है उसको रिमूव कर देता है और या फिर उसको किल कर देता है। तो सेम हम वैक्सीनेशन में करते हैं। इन वैक्सीन्स, वेदर इट इज लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द जर्म और द होल जर्म in weakened form or in killed form or a part of this germ.
So it is known as, it is recognized by our immune system as foreign invader. हमारा इम्यून सिस्टम उन जर्म्स और पार्ट ऑफ जर्म्स के लिए एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू कर देता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। तो अगली बार जब भी हम उस डिसीज के लिए एक्सपोज होते हैं तो आवर इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड कि दिस इज द फॉरेन बॉडी विच आई हैव प्रीवियसली एनकाउंटर्ड, और वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं उसके अगेंस्ट। तो ऐसे नेचुरली एक हमारा जो इम्यून सिस्टम है नेचुरली डिसीजेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। दिस इज द basic mechanism regarding vaccination process. Okay, so हम जो बच्चों को वैक्सीन देते हैं वो फर्स्ट 2 years में सबसे ज्यादा वैक्सीन होते हैं। जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल बना हुआ है वो हर कंट्री के लिए डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन द डिसीज burden and depending on the population structure. Right. So India में हमारे पास 2 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट रन करती है और एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रन बाय गवर्नमेंट is including all the necessary vaccines which a child must receive. Okay, and it has been decided by government of India on the basis of the disease burden, the most prevalent diseases and the cost effectiveness. But Indian Academy of Pediatrics includes all those vaccines which are available in India, and it doesn't basically based on the cost issues. It is like ki, these vaccines are available and one should get these vaccines. So IAP includes all those vaccines which is available in India and all the against all the disease which are prevalent in India. So there are few vaccines only which is not available in government. First is influenza vaccine. Influenza vaccine we give 2 doses in first year, and after that annually 1 dose. Another one is our hepatitis A vaccine. If you are giving that live vaccine, that single dose is sufficient. If the child is getting killed vaccine, then 2 doses 6 to 12 months apart is sufficient. Third is chickenpox. We give it at 15 months, and 2 doses are required, 3 to 6 months apart. Another one is human papilloma vaccine. So human papilloma vaccine is against cervical cancer, and now 10-valent vaccine is also available, which is also for the boys for anal carcinoma. Okay, and it is for less than 15 years. 2 doses are required in girls, and more than 15 years 3 doses are required. So with this all discussion, now we can say कि yes, our vaccination is important need of your childhood, because अगर हम generally भी बात करें population में, investing in vaccination for your child is much better than investing for the hospital bills when your child is getting diseases. That was the saying, prevention is better than cure, and ma'am has highlighted what are the important vaccinations the child should have till 2 years. So ma'am, if we talk about the vaccination, so we have 2 vaccinations, like the painless and the one which having pain. That conventional pain. So ma'am, is painless is always a good vaccination, or what's the truth behind this painless versus non-painless? So this painless versus painful is a misnomer. Okay, both the vaccines, we are not saying it's painful, it's the conventional vaccine. The only difference is because of that pertussis vaccine. We have this vaccine in combination form. We are not having that pertussis vaccine separately. Okay, so we have this in combination form. That is what this is known as, कि combination form में है तो everything is painless, but this is not true. Everything is not painless. The only difference is we are just giving acellular pertussis in painless and whole cell pertussis in conventional vaccine. And this is not painless. The child will receive it with a syringe, okay, with needle. So पेन तो needle का पेन दोनों में होता है और दोनों ही इंजेक्शन से लगते हैं. बट द थिंग इज कि वैक्सीन के बाद, परटूसिस वैक्सीन के बाद जो बच्चे को फीवर आता है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है, या बच्चे की इंजेक्शन साइट पर बहुत सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो पेनलेस के साथ थोड़ा कम हो सकती है. बट बोथ द वैक्सीन आर इक्वली इफेक्टिव. दोनों ही बराबर का इफेक्ट दिखाती है और दोनों ही वैक्सीन आप चूज कर सकते हैं. इवन योर कन्वेंशनल वैक्सीन इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, सो आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं. सो जस्ट दिस इज जस्ट लाइक you are just purchasing the comfort for your child, otherwise efficacy is equal for both. You correctly mentioned, ma'am, the government one. So parents often wonder whether to go for the government or the normal pediatrician. So ma'am, is it like
Is there any difference between them? के government, non-government vaccination? As I previously told you, few vaccines are not available in government sector, which I mentioned. So what you can do कि आप government से लगवा सकते हैं. This is actually completely their choice, what they want. Okay, we don't want to have that inconvenience, the fever, the pain. Yes, it can be there with painless also. A little bit is there, but yes, with conventional one, it can be a little bit higher. So this is completely their choice. But few vaccines are not available in government center. You can choose from, you can opt for those from private sector, from private clinics or hospitals. So this is the last question for my segmentation of newborn care. So ma'am, can you just give a message to the new parents about the vaccination, whether to go for it or not, and about their child? Anything ma'am you want to just share with our new parents? So every vaccine is important, and initial 2 years are the phase of vaccination. Most of the disease are covered in these 2 years, and whether you are going for painless or conventional, kindly go for it at the scheduled time. But in case you have missed a vaccine and you were not able to give that, or you were not aware of that, then you can just start where you left off. Okay, it's not like कि फिर से पूरा शेड्यूल आपका कुछ मिस हुआ और आपको फिर से पूरा शेड्यूल रिपीट करना है. इट्स नॉट लाइक दैट. जहाँ से छोड़ा है हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं. मीट योर पीडियाट्रिशियन. योर पीडियाट्रिशियन विल डिसाइड कि हमें क्या देना है और कब देना है. सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेट जो आपको पीडियाट्रिशियन ने दिया है, बिकॉज वैक्सीन्स आर डिसाइडेड लाइक कि जो डिसीज जिस एज पर सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो वैक्सीन का जो शेड्यूल बनाया गया है वो इसी तरह से बनाया गया कि कौन सा डिसीज किस एज पर सबसे ज़्यादा होता है. तो डिसीज होने के पहले ही अगर हम बेबी को वैक्सीनेट कर देते हैं तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं. एंड वन मोर थिंग, द पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा लिया, अब कभी हमारे बच्चे को सर्दी खांसी तो नहीं होगा. तो इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपके बच्चे को वैक्सीन मिला हुआ है, सपोज टाइफाइड का भी वैक्सीन मिला हुआ है, और बच्चे को फिर से ऐसा नहीं है कि टाइफाइड नहीं हो सकता, बट द सिवियरिटी विल बी लेस. एंड रिगार्डिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा वायरस, बट फॉर कॉमन कॉफ एंड कोल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ वायरसेस. ओके, तो हम सिर्फ इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से, बट कई सारे कॉमन कोल्ड कॉफ के वायरस हैं जो बच्चे को होते रहते हैं और वो बहुत सीरियस भी नहीं होते. तो धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी उनके लिए डेवलप हो जाती है. Right. And with this, I would request all the parents, new parents, either new or the old, so just don't miss your vaccination day. Do visit your pediatrician at earliest. It is for your child only.